Hi students, in this lecture we are going to learn bond fission. In bond fission we are going to learn about homolytic fission and heterolytic fission. And second thing which we are going to learn is the reaction intermediate. In reaction intermediate we are going to learn the free radicals, what are free radicals, and then carbocations, what are carbocations and their stability. So let us start with bond fission. So what is bond fission? Bond fission, name is itself clear, it is bond fission. Bond fission means bond breaking. Bond fission means what? Breaking. Bond breaking. So a bond can be broken in two ways. First, that is homolytic fission or breaking, and second is the heterolytic fission. So bond fission can be done in two ways, homolytic and heterolytic. So first we are going to learn about homolytic fission. So homolytic fission, homolytic breaking. Let us consider we have a molecule AB. Both have same electronegativity. En for electronegativity. Both have same electronegativity. So in presence of UV light or radiation, the bond is going to break symmetrically or homolytically. We have AB molecule. In this AB molecule, both A and B have same electronegativity, equal electronegativity. So in presence of UV light, they are going to break homolytically. So what is the meaning of homolytically? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि AB की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है A और B की, और वो UV लाइट के प्रेजेंस में वो ब्रेक होने जा रहा है, तो कैसे ब्रेक होने वाले हैं? होमोलिटिकली और सिमेट्रिकली. सो होमोलिटिकली का मतलब क्या हुआ कि in this AB there are two electrons. So one electron will go to B and one electron will shift towards A. मीन्स A और B के बीच में एक बॉन्ड है, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन B के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन A के पास जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज नोन एज व्हाट? होमोलिटिक ब्रेकिंग या होमोलिटिक फिजन और सिमेट्रिकल फिजन. एंड ड्यू टू दिस वी गेट टू species, A dot and B dot. So A dot and B dot both are known as free radicals. Clear? Homolytic fission का मतलब क्या हुआ कि you have a molecule A and B. In presence of A and B, in presence of UV light, A and B, they are going to break homolytically. It means A will get one electron and B will also get one electron out of two electrons. So A dot and B dot are the products, so they are known as free radicals. Okay, next, second example you can take. You have H2. So in presence of UV light, this H plus will form H dot plus H dot. So one electron with H, one electron with this. तो ये जो मैंने ये एरो का जो साइन है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको शायद बताया था, ये क्या है? हाफ हेडेड एरो. हाफ हेडेड एरो.
ठीक है. And this one and this one, these two are what? Free radicals. Free radicals. Free radicals. तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल. एग्जाम्पल, hydrogen free radical. Next, again you can take any example. Let us consider we have second example, you have CH3H. So in presence of UV light, so जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक होगा? यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ना, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो मैं इन हाइड्रोजन को हटा देता हूँ और फिर से इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी. यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 इलेक्ट्रॉन विथ 1 हाइड्रोजन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन विथ कार्बन. सो वी गेट दिस डॉट प्लस H डॉट. आप CH3 को ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 डॉट तो भी चलेगा. सो दिस इज व्हाट? दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल. मिथाइल फ्री radical, and this is, you know, hydrogen free radical. Hydrogen free radical. So these two are clear to all of you. So in homolytic fission, in homolytic fission, in homolytic fission we get free radicals. We get free radicals. You can see here we are getting free radicals. So homolytic fission definition आपको आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है, आपके पास नोट्स आपके पास हैं, तो आप वहाँ से डेफिनेशन देख सकते हो. बट सिंपली होमोलिटिक का मतलब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या होमोलिटिक ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. व्हाट इज होमोलिटिक और सिमेट्रिकल ब्रेकिंग? इन विच ईच एटम ऑफ दैट बॉन्ड विल गेट व्हाट? सिंगल इलेक्ट्रॉन. सो आप AB ले सकते हो, आप ये H2 ले सकते हो एग्जाम्पल में, ठीक है. आप ये यहाँ पे आप देखो CH3 ये ले सकते हो, तो कोई भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट next example we are going to do, that is heterolytic fission. Heterolytic fission. Second one is heterolytic fission. So in heterolytic fission, what we are going to get? In heterolytic fission, heterolytic means unsymmetrical breaking of the bond. Unsymmetrical. In this case there will be unsymmetrical breaking. Unsymmetrical breaking. Unsymmetrical breaking of bonds. Unsymmetrical breaking of bonds. So unsymmetrical breaking of bonds, for example, let us understand with the help of example. You have AB, again you have AB, but in this case, in this AB, B is more electronegative. More electronegative. So in presence of any reagent or condition, ठीक है, वो नहीं पता. लास्ट टाइम आपको यूवी लाइट लिया था, यहाँ पे कोई भी कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन, उसमें से कोई भी कंडीशन हो सकता है. तो ये AB जो है जिसके बीच में एक ही बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है. सो व्हेन देयर इज अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, देन बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन AB विल शिफ्ट टूवर्ड्स B. Why? Because B is more electronegative. Then A, we get B, but B is getting the electron. बॉन्ड किधर शिफ्ट हो रहा है? B के पास में, तो बॉन्ड B के पास जाएगा. B एटम है तो उसको क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज. और A को क्या मिलेगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज.
फिर से A एंड B के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, but due to some reason this bond is going to break. Since B is more electronegative, so both electrons will shift towards more electronegative element, that is B, and will form B minus. So A will get what? Plus charge. So this is known as cation and this is known as anion. So in unsymmetrical breaking we get cations and anions. In heterolytic fission we get charged particles like what? Cations and anions. So अगर वो चार्ज जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के पास होगा तो क्या बन जाएगा बेटा? वो कार्बोकैटायन. Let us consider with the help of examples. So next example. For example, let us consider you have CH3Cl. So due to some reason this bond is going to break. Since chlorine is more electronegative than this CH3 carbon, so this bond will shift in this direction. So we get CH3 plus Cl, but with Cl with minus, and this will plus. So this is what? Chloride ion, and this is known as what? Methyl. This is known as methyl what? Carbocation. methyl carbocation. मिथाइल तो है, ये तो क्लियर आपको है. कार्बोकेटाइन क्यों बोला? क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लो आप. नेक्स्ट यू हैव CH3CH2Cl. again due to some condition this bond is going to break, so both electron will shift towards chlorine side and we get this CH3CH2 plus and plus Cl minus. कितने कार्बन है? 2 कार्बन है बेटा. यस. सो एथ हो गया. आपने हाइड्रोजन हटा दिया एक, सो Yl, बट देर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट हाइड्रोजन, सो दिस बिकम्स व्हाट? कार्बोकेटायन. इथाइल कार्बोकेटायन. ओके, अंडरस्टूड. सो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया मुझे लगता है. आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? बॉन्ड फिजन से. बॉन्ड फिजन मीन्स ब्रेकिंग. होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन. होमोलिटिक फिजन मीन्स सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, मीन्स ईच atom will get single electron. So you have AB. In AB, A and B having equal electronegativity. So after breaking of the bond, in presence of UV light, B will get 1 electron and A will also get 1 electron. मीन्स दोनों को बराबर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है क्योंकि A और B के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है. सो एक इलेक्ट्रॉन B के पास, एक इलेक्ट्रॉन A के पास, एंड दे आर नोन एज फ्री रेडिकल्स. आप H2 का एग्जाम्पल ले सकते हो. हाँ, जो एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसको हम हाफ हेडेड एरो के थ्रू शो करते हैं. फिर आप ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हो. हेटेरोलिटिक फिजन क्या है? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसमें क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक ही एटम के पास जाएंगे. क्यों जाएंगे? क्योंकि एक उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम है. तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा? अनायन. तो नेक्स्ट क्या जो बचा हुआ वो क्या बनेगा? कटायन. एग्जाम्पल के लिए, तो अगर आपका कार्बन इन्वॉल्व है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दैट बिकम्स कार्बोकटायन. यहाँ पे आपने 2 एग्जाम्पल देख लिए. ओके, now we are going to learn about reaction intermediate. So reaction intermediate रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा? ये जो है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो
थोड़े टाइम के लिए जो स्पीशीज़ फॉर्म होते हैं थोड़े टाइम के लिए, और फॉर्म होते हैं उसी रिएक्शन के अंदर, उसी रिएक्शन में के अंदर रिएक्शन कर लेते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। फॉर्म भी होते हैं मतलब जनरेट भी होते हैं, रिएक्ट भी करते हैं और वो वहाँ से डिसअपियर भी हो जाते हैं। ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, these are highly reactive. They form for some time, for a little time, and they react in the reaction inside the reaction and get disappeared. कुछ टाइम के लिए ये फॉर्म होते हैं, इनका जो लाइफ है वो बहुत ही छोटा होता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। दे आर शॉर्ट लिव्ड, highly reactive, and participate in chemical reaction and get disappeared. So these type of species are known as reaction intermediate. So reaction intermediate में first example क्या बेटा? free radical. free radical जो अभी आपने ऊपर बनाया था, free radicals. free radicals second क्या बेटा? that is carbocation. और भी बहुत सारे हैं बट हम दो ही पढ़ रहे हैं, free radicals, carbocations. So free radicals and carbocations are short-lived. They are very reactive. They they are generated in the chemical reaction, organic reaction, and then after reacting with other species they get disappeared. So they are known as reaction intermediate. reaction नाम से क्लियर, reaction inter मतलब reaction के बीच में, कहीं पे बीच में ये फॉर्म होते हैं, जनरेट होते हैं, रिएक्ट करते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं. सो दे आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट. वी हैव टू रिएक्शन इंटरमीडिएट. फर्स्ट इज फ्री रेडिकल्स एंड सेकेंड इज कार्बोकैटायन. सो कैसे ये जनरेट होते हैं अभी आपने ऊपर देखा. फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं? जब बॉन्ड क्या होगा? सिमेट्रिकली ब्रेक होगा. बॉन्ड क्या होगा? सिमेट्रिकली ब्रेक होगा तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं. इन फ्री रेडिकल, a free radical contains what? Odd electron or unpaired electron. फ्री रेडिकल को आप कैसे डिफाइन करोगे? an atom or group of atom having an odd electron is known as free radical. ठीक है, समझ में आया? फिर से अब हम फ्री रेडिकल्स को पढ़ लेते हैं. फ्री रेडिकल क्या है? फर्स्ट फ्री रेडिकल्स. So an atom or group of atom which contain odd electron or unpaired electron is known as free radical. So these two are free radicals. समझ में आया? आपके पास कोई एटम जैसे हाइड्रोजन एटम, उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल. यहाँ पे मिथाइल है, उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव. कैसे फॉर्म होते हैं? बिकॉज ऑफ होमोलिटिक फिजन ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड. सो यू हैव अ नॉन पोलर बॉन्ड in presence of UV light. This non-polar bond is going to break symmetrically or homolytically. So H1 H with one odd electron. So these two are what? Free radicals. Hydrogen free radicals. Clear हो गया बेटा? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स. और नेक्स्ट देखो आप, अब इसको थोड़ा और जाते हैं. कार्बन के रिस्पेक्ट में हम पढ़ने वाले क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. तो यू हैव दिस फ्री रेडिकल CH and H with one dot. So this is methyl free radical. This is methyl group, but it has odd electrons, so this becomes free radical. So in this methyl free radical, अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 bonds. सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp2. सो फ्री रेडिकल्स अगर आपके पास कोई कार्बन एटम का फ्री रेडिकल है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा. कैसा होगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा. जिसमें से 3 क्या है आपके पास? sp2 हाइब्रिडाइज है और एक क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. जो कार्बन के 3 हैं, कार्बन के पास जो 3 बॉन्ड है उस वो sp2 हाइब्रिडाइज है और एक जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है? unhybridized p orbital. Okay, I think now you guys are very clear to with this free radical.
अगर आप चाहो तो आप उसका स्ट्रक्चर भी मैं बना सकता हूँ आपके लिए मिथाइल का। तो ये कार्बन हो गया, ये एक आपने ऐसे बनाया H, ये दूसरा H हो गया, ये तीसरा H हो गया। तो ये क्या है, sp2 वो आपने ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन odd electron. So this is the structure of free radical. So if you have a carbon methyl free radical or ethyl free radical, then carbon containing odd electron or unpaired electron will be sp2 hybridized. You can take another example. Beta. Another example, let us consider you have CH3 CH2 dot. So again you can see this carbon, again you can see, इसको मैं रब करके इसको ऐसे लिख देता हूँ, इससे आपको और इजी हो जाए. So this carbon, the carbon which has odd electron, ये कार्बन के पास odd electron है, तो इसके पास कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है. तो ये फिर से क्या हो गया, sp2 with क्या, one odd electron. Okay, clear to all of you? So अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो. सो वन बाय वन एग्जाम्पल्स लेता हूँ. सो सबसे सिंपल कौन सा, मिथाइल. कार्बन के ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर क्या बेटा, CH3 CH2 इथाइल फ्री रेडिकल. दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल फ्री radical, and this is ethyl free radical. Next, in the same way you can take CH3CH डॉट. ये कौन सा ग्रुप है, शायद आपको याद हो, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल. एक और एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूँ जो आपको याद होना चाहिए, CH3 याद आया, टर्शरी, टर्ट ब्यूटाइल फ्री रेडिकल. ओके. सो जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको लिया, ये एग्जाम्पल, ये दिख रहा है, ये सब एग्जाम्पल. So this ethyl free radical is what? This is 1 degree free radical. Why it is 1 degree? क्योंकि ये 1 degree कार्बन से अटैच. तो ये जो कार्बन, ये 1 degree है क्या? Yes, क्यों? Because this carbon is bonded to only methyl. So this is 1 degree carbon, and this 1 degree carbon is containing what? Odd electron. So this becomes 1 degree ethyl free radical. So ethyl free radical is what? 1 degree. ओके. नेक्स्ट ये देखो आप, सेकंड आइसोप्रोपाइल का देखो आप. आइसोप्रोपाइल में ये जो आपका कार्बन है जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज बॉन्डेड टू टू मिथाइल. दिस इज व्हाट, 2 degree फ्री रेडिकल. गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? लुक हियर, this carbon which has odd electron is bonded with 3 carbon, directly bonded to 3 carbon. This is what, 3 degree free radical. So you can have 1 degree free radical, 2 degree and 3 degree. 1 degree, 2 degree and 3 degree. Okay. So next ये सब पॉइंट आपकी नोट्स में है, अब अभी आप जाके कोरिलेट कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा. So now we are going to understand the stability. First point क्या, कि the order of stability. In notes ये पॉइंट सब मैंने दिए हैं. The order of stability में you can see this. 3 degree free radical is more stable than 2 degrees, more stable than 1 degree, then more stable than CH3. या मिथाइल फ्री रेडिकल, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, वो बार बार मैं कर रहा हूँ आपके लिए, इससे आपको क्लियर कट हो जाए. तो इनकी स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. द स्टेबिलिटी
can be explained on the basis of hyperconjugation 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 ठीक है। स्टेबिलिटी हम किसके बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे। तो इसको मैं नेक्स्ट जो पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी स्टेबिलिटी को और फिर कार्बोकैटायन को। नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा और ये अपना लंबा लेक्चर हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, तो जिससे दिक्कत हो जाती है फिर अपने को देखने में। तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा करते हैं। ठीक है, ओके।